made directly pertinent observations regarding the conduct of that person seeking relief, namely Nupur Sharma. We saw three-pronged attack. And this three-pronged attack is the signature campaign of the BJP. All too familiar. One, savage and faceless trolls spewing fake news and propaganda immediately started. Second, an orchestrated letter by so-called intellectuals. And three, a one-sided and contemptuous reporting planted in large sections of the Godi media. The large silent majority stood by this vital, possibly most fated and supported organ of governance, the judiciary. But a sitting judge of the Supreme Court, Justice Pardiwala, was forced to observe, and I quote, "Attacks attempted at our judges for judgments will lead to a dangerous scenario where judges will have to pay greater attention as to what the media thinks rather than what the law actually mandates. This puts the rule of law on the burner, ignoring the sanctity of the respect for the courts," unquote. Please juxtapose this statement of a sitting Supreme Court judge with the kind of trolling attacks which happened immediately after the bench dealt with that case. City, with authority even above the judiciary, and with reckless over-adventurism intended to intimidate judges. I just want to remind you of a little remembered comment by then Minister Mr. Meghwal of the ruling BJP in 2016, 6 years ago, who said that you must have a stop put to the running commentary by the judiciary against other organs of the state, quote unquote, running commentary. Influence, for example. It is sad to find that a fact checker, the person under arrest is a fact checker. He simply checks facts and says, this is a false claim. The entire army of law officers was put out by the government to oppose bail matters, quote this fact checker. The entire army of law, senior law officers was saying what? They were saying, in a worse case than shooting the messenger while ignoring the message, they were speaking in defense of those whose illegal conduct had been exposed by that fact checker. It was a sad sight. They desperately and sheepishly opposed the bail on grounds that were far removed. For example, it is reported and well known, some of us were in court, one of the arguments of the state was that the sentiments of followers had been hurt by having a seer's hate speeches exposed. So you give a hate speech, so-called seer, I expose it by a fact check or by showing it, and my exposition or my exposure will hurt your feelings, is the argument officially orchestrated by this ruling party and the government, is that all of this is part of a grand shady conspiracy. Such small-minded and outrightly unconstitutional claims expose this government and its defenses in court. Friends, I will end by telling you two more things. One is, of course, official written representations, and one is as recent as 10th July, today is I think 12th, 2 days ago, by one of the largest high courts in this country, Bombay, to the law minister, taking objection to the clearance, or rather the non-clearance, of umpteen names for appointment to the Bombay High Court. That affiliated among
is functioning just about half roughly of its strength. People in the lists approved at the collegium level not once but twice over 2 to 3 years are still pending, with the court functioning at 50% odd strength. Lastly, friends, and this is a second slightly unrelated but still relevant point in connection with the judicial subject we are talking about today. A very important judgment yesterday deserves to be underlined by the Supreme Court regarding bail jurisprudence. We have, friends, over the last 7 years seen egregious executive action on flimsy grounds, usually invoking inapplicable provisions like sedition, like UAPA, the most draconian they can find on the book. The biggest defaulters in this misuse of provisions, inapplicable provisions, has been the central government. Equally, they know that the process is the punishment. The end result be damned. The process is the punishment. Tardiness or hesitation of courts through bail intervention in such contexts exacerbates this bad situation. Hence, friends, the relevance of yesterday's judgment. The Supreme Court yesterday has said that the lack of speed in dealing with bails, as also a hesitation to grant them, would, quote unquote, make India look like a police state. The Congress believes that this is much needed guidance from the Apex Court about the approach to bails and about how bail, not jail, being the norm is operationalized in practice. And I say that this is particularly contextual and important where the ruling dispensation seeks to rule through fear and control through coercion. We, therefore, the Congress Party, intend using due process of law in accordance with the Constitution and subject is judgment, and we shall initiate it through appropriate state amendments in these states, Congress ruled states, regarding bail jurisprudence. दोस्तों, मैं संक्षेप में दोहरा दूं हिंदी में. मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये सरकार 3 आईज वाली सरकार है, जो मैंने आपको कहा अभी, डराना, भड़काना, इंटिमिडेशन, गैर कानूनी हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, और दुष्प्रभाव, इन्फ्लुएंस. इंटिमिडेशन, इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस. और ये सब विशेष रूप से दयनीय हो जाता है जब इसका दुरुपयोग किया जाता है सबसे महत्वपूर्ण संस्था के लिए, यानी न्यायपालिका. दोस्तों, कई वर्षों से ये एक खुला सच है. कंट्रोल फ्रीक सरकार ने बार बार अलग अलग हथकंडे अपनाए हैं इस तीसरे अंग अपॉइंटमेंट्स के विषय में. अपॉइंटमेंट्स के विषय में, जबकि आप जानते हैं कि अधिकतम बड़े बड़े हाई कोर्ट्स में 50% स्थान रिक्त हैं, और ये विलंब करवाना जानबूझकर सेलेक्टिवली उन नामों के विषय में जिनसे ये सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार
जिनको नहीं चाहती है, जिनसे खुश नहीं है। दूसरा, ये आजकल आम हो गया है कि जो नाम सर्वसम्मति से कोलिजियम्स भी अनुमति दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, चाहे उच्च न्यायालय और उसी सूची के बाकी नामों को कुछ महीनों बाद किया जाता है, जिससे कि आंतरिक रूप से वरिष्ठता, सीनियरिटी में दुष्प्रभाव पड़े। और जिन लोगों को ये सरकार रोक नहीं सकती है कोलिजियम के सुझाव के कारण, उनको कम से कम इतना विलंब करे कि उनके आगे की सीनियरिटी हमेशा के लिए खराब हो जाए। और हाल में ऐसे बहुत कई उदाहरण आए हैं। तीसरा, एक पूरा वातावरण बनाना भय का, झिझक का और हर प्रकार के प्रसंगों का दुरुपयोग करके हिंट करना, इंसिनुएशन करना डॉसियर राज के आधार पर न्यायपालिका के विषय में, न्यायाधीशों के विषय में। चौथा, येन केन प्रकारेण कोलिजियम्स में कहीं न कहीं से दंड के आधार पर ट्रांसफर, स्थानांतरण करवाना उच्च न्यायालय के जजेस का, उनको डराने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए। पांचवा, हर प्रकार से जहां जहां अपनी फलसफे, अपनी नीति और अपने उद्देश्य से मेल नहीं खाते हैं जजेस, उन पे ऊपर दुष्प्रभाव डालना, हस्तक्षेप करना। और अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपनी कोई एक वफादारी की कसौटी नहीं बनाकर उसके आधार पे न्यायाधीशों का चयन करना या उनका प्रस्तावित नाम आगे भेजना। ये 6 चीज़ें इस सरकार ने प्रचुर मात्रा में पिछले 7-8 वर्षों में की है। हमारे पास ठोस उदाहरण है, पूरा देश जानता है। नाम नहीं ले सकते इसका मतलब नहीं है कि कानूनी सर्कल्स या उनके बाहर ये सर्वविदित नहीं है। इस संदर्भ में जो कल कर्नाटक से एक स्थापित न्यायाधीश के वक्तव्य आया, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंटरफेरेंस का एक सबसे ज़्यादा भयानक उदाहरण। और ये कर्नाटक की बात नहीं है, ये उस लर्नेड सिंगल जज की बात नहीं है, ये इस पूरी चीज़ की गंभीरता को दर्शाता है, जिसके मैंने आपको 6 संस्थापिक उदाहरण दिए इस सरकार द्वारा। उस जज का मैंने कोटेशन आपको अंग्रेजी में पढ़ दिया है, मैं वापस अंग्रेजी में नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने सीधा कहा है कि ही हैड रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम दिल्ली, द पर्सन आस्क्ड हिम अबाउट हिम, आई सेड आई एम नॉट अफिलिएटेड टू एनी पार्टी, ही सेड द एडीजीपी इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ही इज़ वेरी पावरफुल, इत्यादि इत्यादि। मैं वापस नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ दिया है। ये एक भयानक, दयनीय, एक प्रकार से विश्वास नहीं आता वैसा एक वक्तव्य है एक सिटिंग जज द्वारा। इससे ज़्यादा गैरकानूनी हस्तक्षेप का बुरा उदाहरण कौन सा हो सकता है। अभी जो इंटिमिडेशन की हमने बात की, डराने, भड़काने, दुष्प्रभाव डालने की, उसका एक बहुत ही अजीबोगरीब उदाहरण आया जब एक महिला ने खुद रिलीफ मांगी, नूपुर शर्मा ने, और जो याचक होता है, जो रिलीफ मांगता है, उसको पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र रखता है उच्चतम न्यायालय, वो रिलीफ को मना करे और मना करने के कारण दे, मौखिक दे या लिखित दे, वो कह सकते हैं, अधिकार क्षेत्र पूर्ण है। उस दौरान जब एक खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय के ये टिप्पणियां की कि हम आपको क्यों नहीं दे रहे हैं रिलीफ, तो 3 चीजें हुई तुरंत, जो इस सरकार और इस सत्तारूढ़ पार्टी की सिग्नेचर है, उनकी पहचान है। एक, हर मिनट, हर घंटे, हर प्रकार के ट्रोलिंग, झूठी न्यूज, प्रोपेगेंडा पूरे सोशल मीडिया में फैल गया, जजेस के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, इस केस के बारे में, इत्यादि इत्यादि। दूसरा, एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज, सोचा समझा, बनाया हुआ, बनावटी, कृत्रिम बुद्धिजीवियों की चिट्ठी।
यद्यपि ज्यादातर लोग, जिनको आप साइलेंट मेजॉरिटी कह सकते हैं, उन्होंने समर्थन किया उस निर्णय का भी और जो टिप्पणियां हुई उसका भी, लेकिन एक उसी खंडपीठ के एक न्यायाधीश माननीय जस्टिस पार्डीवाला साहब को ये कहना पड़ा विवश होके, और वो कोटेशन मैंने अंग्रेजी में पढ़ दिया है, इसलिए मैं वापस नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा, चेतावनी दी कि इस प्रकार से अपने वक्तव्यों के लिए जब न्यायाधीशों पे सोशल मीडिया पे इस प्रकार के आक्रमण होंगे तो पूरा एक विकृत हो जाएगा हमारी न्यायपालिका का पूरा ढांचा। मिनिस्टर श्री मेघवाल जी ने भी कहा था बीजेपी की तरफ से कि जल्द से जल्द हमको न्यायपालिका की रनिंग कमेंट्री को रोक देना चाहिए, रोकथाम कर देना चाहिए। लोकसभा में कहा था 2016। ये उनकी सोच, उनका मंतव्य, उनकी उद्देश्य को दर्शाता है। और अब इन्फ्लुएंस पे अगर आए हम, दुष्प्रभाव पे, तो जिस प्रकार के अजीबोगरीब हंसाने वाले दलीलें और समर्थन सरकार की तरफ से आया, एक बेल के मामलों में फैक्ट चेकर ने जो बेल की, ऐसे अजीबोगरीब चीजें जिससे कि पूरी तरह से इस सरकार की सोच एक्सपोज होती है। एक, और बड़े बड़े वरिष्ठ लॉ अफसरों की ये दलील थी, एक दलील थी कि जिसके बारे में ये फैक्ट चेक हुआ था और जो एक्सपोज हुआ था, उनके सोच को, उनके मन को ठेस पहुंची होगी, इसलिए आवश्यक है कि इस व्यक्ति के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा किया जाए। यद्यपि जो फैक्ट चेक किया गया था वो हेट स्पीच के बारे में किया गया था। बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। हर केस में जो दलील आई वो किसी भी मुद्दे पे नहीं आई, वो सिर्फ बरगलाने और ध्यान कहीं और आकर्षित करने के आधार पर बनाई गई। दोस्तों, मैं अंत में एक और मुद्दे को छूते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, और वो कि हर बेनामी, हर बिना वजह के न लागू होने प्रावधान के आधार पर भय और कंट्रोल इस सरकार ने करने की नीति उठा ली है और तरकीबें निकाल ली हैं। कभी वो सेडिशन के प्रावधान का दुरुपयोग करते हैं, कभी यूएपीए का और अन्य कई प्रावधानों का। सबसे ज्यादा उल्लंघन इस मामले में केंद्र सरकार और उस केंद्र सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें प्रदेश में वही करती हैं। वो ये भी जानते हैं कि ये प्रावधान लागू नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी जानते हैं कि जो समय लगेगा इसका हल निकालने के लिए, वही अपने आप में दंड है, सफिशिएंट दंड है, पूर्णतया दंड है। देने में बेल द्वारा, तो ये इस बात से ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं, ज्यादा इस हरकत को दोहराने की क्षमता रखते हैं। इस संदर्भ में जो कल निर्णय आया है, जिसमें बड़ा स्पष्ट कहा है उच्चतम न्यायालय ने कि अगर बेल नॉट जेल एक नियम है, एक सिद्धांत है, तो एक तो विलंब होना बेल के निर्णित करने में, बेल के अंतिम निर्णय में विलंब, उस बात के बारे में बात की उच्चतम न्यायालय में। और दूसरा कि अगर आप इसको नहीं देंगे बेल को, या उस पर झिझकेंगे या व्यवधान प्रकट करेंगे उसके अंदर, तो भारत को लोग पुलिस स्टेट कहेंगे। ये मेरे शब्द नहीं, उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। कांग्रेस पार्टी ये निश्चित रूप से मानती है कि जो गाइडेंस, जो चीजें लिखी हैं कल वाले निर्णय में, उनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और कांग्रेस इस बात को आपके सामने रखती है कि कांग्रेस कानून की परिधि के अंतर्गत स्टेट अमेंडमेंट्स द्वारा
लेकिन हम समझते हैं कि ये अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से ऐसे समय पर जब पूरा देश एक भय के वातावरण द्वारा, एक कंट्रोल के वातावरण द्वारा निर्णित किया जाता है इस सरकार द्वारा। धन्यवाद। वो तो इसी पे वैसे भी अब तो हम काफ़ी इस मामले में पर्टिकुलर हैं। पहले इसको ख़त्म कर लें, पहले इसकी बात कर लें, उसके बाद देखें। See, in a democracy, the way out is to educate, enlighten, and bring to the attention of the people of this country, through people like you, the true ills. In a democracy, there is no other forceful method and should not be. Secondly, the way out is to rule by example and emulate by not merely preaching but practicing. That is why at the end I have said that the Congress ruled states are likely, of course subject to their own legislatures and the constitutional provisions, enact amendments which will liberalize the bail law. Thirdly, I think it is important that each organ sees and knows the way, the shabby manner in which the judiciary is being treated by this government. Okay. नहीं, देखिए, मैं बाकी किसी बातों में टिप्पणी नहीं करने वाला, बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं मैं आपसे। मैं दो मुद्दों में निंदा से सहमत हूं, मैं यानी कांग्रेस पार्टी। मुद्दा नंबर 1 कि ऐसे फंक्शन, ऐसे पर्व, ऐसे दिन सिवाय सरकार के कुछ सीमित अंगों के लोगों के होने से और किसी विपक्ष के अंग को किसी व्यापक रूप में नहीं बुलाना भर्त्सना योग्य है। हम आज लोकतंत्र, गणतंत्र, और वो भी लोकतंत्र गणतंत्र के मंदिर की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट, संसद। उसमें अगर आप बाहर रखते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, निष्कासित करते हैं, बहिष्कार करते हैं ऐसे लोगों का जो इस लोकतंत्र गणतंत्र में चाहे आपसे मेल रखें ना न रखें, इस लोकतंत्र गणतंत्र के एक अभिन्न अंग हैं, ये मैं समझता हूं संकीर्णता दिखाता है, पेटी माइंडेडनेस दिखाता है, और इसका कोई भी तर्क या कुतर्क हो ही नहीं सकता। आपको नियंत्रण करना है, आपको जितनी वाहवाही लेनी है आप ले सकते हैं, लेकिन और गणतंत्र लोकतंत्र के स्टेक होल्डर्स का बहिष्कार करके नहीं। ये एक। दूसरा, मैं विनम्रता से कहूंगा, यद्यपि